Hello class 9, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 2, that is people as resource, we studied about human capital. So human capital is the stock of knowledge, skill, ability, education embodied in a person. Then we talked about human capital formation. So human capital formation can be done by making investment in education, health and training. Investment in human capital is just like investment in the physical capital. Human capital is superior to other resources like land and physical capital. Then we talked about types of human activities. So human activities are divided into two parts: economic activity and non-economic activity. Economic activities are those which is related to earning money, and non-economic activities are those which are done out of love and affection. Further, the economic activities are divided into two parts, that is marketable and non-marketable activities. Marketable activities are those which are made to have financial gain in the form of earning profit, remuneration by selling the product produced by activities of an economic agent, while the non-marketable activities are those activities which are done for self-consumption. Next topic we discuss about was sector of economic activity. So there are three sector of economic activity. First is primary sector, which includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining and quarrying. Secondary activity includes manufacturing, and last tertiary sector includes trade, transportation, communication, banking, education, etc. Activities done by men and women. So there has been division of labor between men and women. Men are paid for the services. On contrary, women are not paid for the services. Education played an important role for the individual to make better use of economic opportunities. Most of the women used to work in places where there was no job security. In this sector, employment was characterized by regular or low income. Basic facilities were missing like maternity leave, childcare and other social security system. Moreover, women with the high education and skill formation are paid highly. So that all we studied lastly. Now today we will read about quality of population. So किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है. फर्स्टली एजुकेशन, देन हेल्थ एंड देन ट्रेनिंग. टुडे वी विल डिस्कस फर्स्टली अबाउट एजुकेशन. So education is a process of learning for acquisition of knowledge. It is an important input for the growth of a person. सो एजुकेशन वो प्रोसेस है लर्निंग का जिसमें हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट है किसी भी पर्सन की ग्रोथ का. यानी कि अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करता है, या वो उसकी लाइफ की ग्रोथ का सूचक होता है उसकी एजुकेशन. डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन लिटरेसी रेट. किसी भी देश का डेवलपमेंट डिपेंड किस पे करता है? उस देश के पर्सनस की लिटरेसी रेट पे. यानी कि अगर वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे तो अच्छी जॉब्स करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे तो अच्छा अर्न करेंगे, अच्छा अर्न कर पाएंगे तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेंगे, जिससे उनका विकास होगा, और उनका विकास होगा तो पूरे का विकास होगा. When a person is educated, then a family can be educated. अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर एजुकेट होती है, या उसकी फैमिली को भी वो पढ़ाना लिखाना चाहता है, बिकॉज ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. आफ्टर दैट सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड. यानी कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो उसकी फैमिली भी एजुकेटेड होगी, फैमिली एजुकेट होगी तो फिर सोसाइटी भी एजुकेट होगी. तो अगर सोसाइटी में एजुकेट होगी तो इससे कंट्री का लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होगा और कंट्री ग्रो करेगी. तो यहाँ पर देखिए इतनी इम्पॉर्टेंट रखती है एजुकेशन, कि अगर हम एजुकेट होते हैं तो उससे हमारी पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होता है. तो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं 1951 से, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो पहला है इसमें
सर्व शिक्षा अभियान. Navodaya Vidyalaya has been set up in almost every district of India. नवोदय विद्यालयों को सेटअप किया गया इंडिया के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में. नवोदय विद्यालयों को सेटअप किया गया ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा सके. SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान एम्स एट यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट. तो SSA एम क्या करता था? तो सर्व शिक्षा अभियान का एम था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उन सभी को एजुकेशन मिले, कोई भी एजुकेशन से छूटा ना रहे. तो पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया सर्व शिक्षा अभियान. दूसरा है इसमें ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंपेन. तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उन बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने ब्रिज कोर्सेज किए और बैक टू स्कूल कैंपेन को स्टार्ट किया. There has been certain school and back to school campaign started by the government for improving enrollment and attendance of the student who left their studies. तो ये उनके लिए था. बच्चों ने अपना स्कूल छोड़ दिया है या किसी भी कारणवश वो आगे स्टडी नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आई ताकि उनको एजुकेशन मिल सके, एनरोलमेंट और अटेंडेंस इम्प्रूव. नेक्स्ट हम देखेंगे मिड डे मील हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट स्कूल फॉर मेंटेनिंग अटेंडेंस एंड गुड हेल्थ. तो तीसरा स्टेप गवर्नमेंट ने क्या उठाया? मिड डे मील को स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट स्कूल में. अब मिड डे मील स्टार्ट करने से क्या हुआ? मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन जिसे हम कहते हैं. स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड जो प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, उसे कहते हैं मिड डे मील. तो मिड डे मील में क्या हुआ? बच्चों को जब खाना दिया गया तो उनको अच्छी सेहत तो मिली, बट खाने के कारण उन्होंने अपना डेली आना भी शुरू कर दिया. तो यानी कि मिड डे एक सक्सेसफुल हमारा स्टेप रहा गवर्नमेंट का. इससे बच्चों की अटेंडेंस और हेल्थ दोनों ही बढ़िया रही. 12th 5 ईयर प्लान ने गवर्नमेंट ने फोकस किया हायर एजुकेशन के ऊपर. बच्चों की एज लगभग इसमें 18 to 23 ईयर्स लगभग. Many universities and colleges has been open with various courses. तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, बहुत से कॉलेजेस खोले गए हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के. There has been increase in GDP share of education from year 1951, 52 to 13-14. It was 0.64% in 1951, which has been increased to 3.3% in 2013-14. So नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो हमारा GDP शेयर था 1951 के टाइम पे, इट वाज मतलब 1% भी नहीं था, ये 0.64% था GDP का. बट बाद में 2013-14 के टाइम पे इसे इंक्रीज़ कर दिया गया 3.3% तक. और अब फोकस किया जा रहा है कि ये 6% तक इसमें खर्चा किया जाए. लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 1951 वाज 18% एंड इन 2011 वाज 74%. तो जब गवर्नमेंट ने इतने सारे स्टेप लिए एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ा सोसाइटी में. तो पहला इम्पैक्ट क्या है कि 1951 में जो हमारा लिटरेसी रेट था वो था 18%, जो कि 2011 में जाके कितना हो गया? 74%. मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है फीमेल के लिटरेसी रेट से, दैट इज़ बाय 16.6%. एंड लिटरेसी रेट जो अर्बन एरियाज़ का है वो ज़्यादा है रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में, दैट इज़ बाय 16.1%. स्टेट वाइज केरला लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट. तो स्टेट वाइज अगर हम देखें तो केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था, दैट वाज अबाउट 93.9%. वेरएज बिहार एक ऐसा रहा जिसका जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है 63%. तो ये सब हमने देखा एजुकेशन के बारे में. सो हम देखेंगे 1950 से लेकर 2015-16 तक कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, कितनी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, कितने स्टूडेंट, कितने यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस थे और हो गए. तो 1951 में जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं वो थे 750 और यूनिवर्सिटी 30. 2,63,000 आपके स्टूडेंट्स और टीचर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस 24,000. अब हम सीधा देखेंगे आपका 2015-16 का डेटा.
जो आपके 1951 में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस 750 थे, वो अब आपके हो गए 2015-16 में 41,435। तो देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे आया है, कितना ज़्यादा गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए हैं हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़। तो पहले आपकी 30 थी, जो कि हो गई है 753। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो पहले थे आपके 2,63,000, तो अब आपके हो गए 2,84,84,741। तो देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में भी यहाँ पे इंक्रीज़ आया है 2015 और 16 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, इनमें भी इंक्रीमेंट आया है, जो कि हो गए आपके 14,38,000 तक। तो देखिए ये कुछ हमने देखा कि कितना इम्प्रूवमेंट हमने किया है एजुकेशन सेक्टर में, क्या क्या गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहे, और ये देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक काम किया है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम नेक्स्ट आपका टॉपिक देखेंगे हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री के लिए हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने अच्छी एजुकेशन ले ली है बट आप बीमार रहते हो, उस काम के लिए रेगुलर ही नहीं हो, अपनी एजुकेशन को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस एजुकेशन का भी वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तब तक कुछ नहीं है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ आपकी संपत्ति है। अगर हेल्थ बढ़िया होगी तो ही आप एजुकेशन का भी सही फ़ायदा उठा सकेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम इसमें, healthy population have a strong ability to fight against diseases, which leads to increase in productivity, potential and ability, thus become assets। अगर आपकी हेल्दी पॉपुलेशन है तो उनके पास एबिलिटी है फिर बीमारियों से लड़ने की, जिसके कारण अब वो बीमारी से लड़ पाएंगे तो काम में भी मन लगा पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी। इस तरीके से फिर वो क्या बन जाएंगे, एसेट हमारे लिए बन जाएंगे। जबकि अगर अनहेल्दी पॉपुलेशन है तो वो अक्सर बीमार पड़ेंगे तो काम पे नहीं जा पाएंगे। इस कारण से क्या होगा, फिर लायबिलिटी बन जाएंगे नेशन के लिए। यानी कि अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो रेगुलर होगी काम में, इस तरीके से एसेट हमारे लिए होगी, और आपकी अनहेल्दी पॉपुलेशन काम में रेगुलर नहीं होगी, जिस कारण से वो आपकी लायबिलिटीज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, so it is very important for the nation to invest on health of a population to convert people as liability to people as resource। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है किसी भी नेशन के लिए अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ में इन्वेस्ट करना, ताकि वो एक लायबिलिटी को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, नर्सेज, डिस्पेंसरीज, नंबर ऑफ बेड्स ETC इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत से स्टेप्स उठाए हैं। डॉक्टर्स को एम्प्लॉय किया है बहुत से, और नर्सेज को, डिस्पेंसरीज खोली गई है, नंबर ऑफ़ बेड में इंक्रीमेंट आया है। तो ये सारे कुछ स्टेप थे जो गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ सेक्टर को लिए। अब इससे फ़ायदा क्या क्या हुआ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी लोगों की इंक्रीज़ हो गई 40 ईयर्स से 68.3 ईयर्स। तो जो पहले लोग केवल 40 साल तक जी पा रहे थे, अब उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है वो 68.3 ईयर्स हो गई। तो 40 ईयर्स आपका कब था, 1951 के टाइम पे, और अब ये 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका 68.3 ईयर्स। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट यानी कि पर 1000 जो भी बच्चे बर्थ लेते हैं उनमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, उन्हीं का रेट बताता है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। तो 1950 के टाइम पे अगर 1000 बच्चे बर्थ लेते थे तो उसमें से 218 बच्चे मर जाते थे एक साल के अंदर। बट अब ये 2011 में रह गया ये ओनली 40। तो मतलब अब 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उनमें से केवल 40 ही मर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेथ रेट। तो डेथ रेट भी आपका 7.1 ईयर से रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 27.58 ईयर्स। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट हमारा कम होना चाहिए, डेथ रेट भी हमारा कम होना चाहिए। अब इन सबसे पता क्या चलेगा कि अगर
ये सारी चीज़ें सही है तो हमारे कंट्री में जो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सही है और यहाँ के जो भी एसेट्स हैं, पॉपुलेशन है, उनका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। किसी भी तरह की वो लायबिलिटी नहीं बन रहे हैं कंट्री के लिए, एसेट के रूप में वो हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो हमने क्या देखा कि आपके जो एजुकेशन है सेक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंट्री की ग्रोथ के लिए, और गवर्नमेंट के बहुत से स्टेप्स देखे हमने इसमें कि गवर्नमेंट ने क्या किया आपके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहला था इसमें सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा था इसमें ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंपेन, तीसरा था इसमें मिड डे मील जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके बाद हमने देखा कि 12th 5 ईयर प्लान ने गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया, आपकी हायर एजुकेशन पे फोकस किया। नेक्स्ट हमने देखा कि जीडीपी का जो शेयर था एजुकेशन के लिए 1951 में वो था 0.64%, जो कि 2013-14 में 3.3% तक इंक्रीज़ हो गया और अब इसका टारगेट है 6%। नेक्स्ट हमने देखा कि लिटरेसी रेट 1951 में 18% था, 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 74% है। इसी तरीके से हमने देखा कि जो मेल का लिटरेसी रेट है वो फीमेल से ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ का जो लिटरेसी रेट है वो रूरल एरियाज़ से ज़्यादा है, और स्टेट वाइज आपका केरला सबसे आगे है और बिहार सबसे पीछे। तब हमने एनालाइज़ किया कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ और कितने कॉलेजेस, कितनी आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और कितने आपके नंबर ऑफ़ टीचर्स का इंक्रीमेंट हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। सो आज हमने देखा हेल्थ सेक्टर में कि हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो ईजिली डिजीज़ से फाइट कर पाएंगे, इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगी और वो हमारे लिए एसेट बन जाएंगे। जबकि अगर अनहेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो कंट्री लायबिलिटीज़ बन जाएंगी। गवर्नमेंट ने भी हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और जिसके कारण नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल में इंक्रीमेंट आया है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स में इंक्रीमेंट आया है, नंबर ऑफ़ नर्सेज में इंक्रीमेंट आया, नंबर ऑफ़ डिस्पेंसरीज हमारे यहाँ बढ़ी है, नंबर ऑफ़ बेड्स हमारे यहाँ बढ़े हैं हॉस्पिटल में। अब इन सबसे इम्पेक्ट क्या पड़ा कि जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, यानी कि एक आदमी की औसतन जो एज होती है वो 40 ईयर्स से 68.3 ईयर्स हो गई, यानी कि 30 साल की उम्र में एवरेज पीपल मर जाते थे। अब उनकी जो एज है, एवरेज पीपल जो अब मरते हैं वो है आपकी 68.3 ईयर्स के बाद ही वो डाई होते हैं, जो कि हमारे एक अच्छे हेल्थ सेक्टर को दिखाता है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो पहले 218 था वो अब डिक्रीज़ होके वो 40 रह गया है। डेथ रेट में भी रिडक्शन है। So that was all for today. Thank you. Please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.